Hello my lovely souls, welcome to my channel. Today we are going to see how far your future spouse will go to marry you. It's a general reading, so take only those messages which resonate with you and leave the rest. Like as always, we have two groups, group number 1 and group number 2. Use your intuition and choose any group which you have drawn into, and I will meet you at my group number 1. Hello group number 1, today we are going to see how far your future spouse will go to marry you. So we have card 5 of Wands, 3 of Cups, Change card, Strength card, Separation and Past life. So, for this group, I can see that you guys have many admirers. Some of them you know or doubt, others are secretive. When it comes to your marriage, your future spouse will face many competitors so that he or she can finally get you as their life partner. With 5 of Wands, there will be an unspoken tough competition, and your person will leave no stone unturned to get you. Basically, he or she will prove their worth. For some of my viewers, before marriage, when you will be in love relationship with your future spouse, he or she will stick with you like a magnet and will take each and every possibility to show others that you are already taken. They will try to attend any events, family ceremony with you, any chance they get, so that they can prove others that so that people will think both of you are going to marry. In other words, they will openly claim you as their future other half. In some contexts, you and your future spouse will be different from one another. It may be in case of like finances, culture, country-wise, age gap, but there will be some difference which may cause some difficulty in getting married. So your future spouse will try their best to balance this. So your person will try to balance this situation. Like they will talk to both sides of the family and will try to convince them so that both of you can happily marry. With Strength, well, group 1, as I have said earlier, that there will be some differences between you and your person. With Strength card, now I can say that there will be a big challenge for both of you to marry each other. To marry you, your person will accept this challenge, or like he or she will stand up against this problem. If you see this Strength card, you will see a lady is opening a lion's mouth. So yeah, I don't need to say about the courage she has to do just a thing. In the same way, your person will go to symbolically will go to such an extent, like symbolically open a lion's mouth in order to marry you. You know what, your future spouse will love you so much. With Separation card, for some of my viewers, it may resonate with you or your person, but I'm sensing that there is a lot of demand and expectations from the family side, like related to marriage. Like the boy or girl should be from this kind of background, like they should have that much bank balance, or like their skin tone should be like this, that their height should be like this. So lots of there's a big list of lots of demand one have to fulfill to be worthy of their family standard or for their child. But you or your person will just want one another in their life. So at last they will go to what they So in last, they will do what they truly want, and it will be a big step for them. For some of my viewers, you have many past life connections with your future spouse. It's like both of your soul have signed the agreement that with every time you two will come into this world, you will marry one another. And in this lifetime also, you two are bound to marry one another. So no matter what challenges comes between you or your marriage, your person will win over those challenges, and the universe will be in your support. So that was for today. If you like this video, don't forget to like, share and subscribe to my channel, and I will meet you in my next video. Till then, bye bye. Hello group number 2. Today we are going to see how far your future spouse will go to marry you. So we have Letting Go card, Trust card, Knight of Cups, Guidance card, Ace of Swords, and lastly 4 of Wands. So with Letting Go card, I'm feeling that to be with you. So to be with you, your person will sacrifice many important things of their life. For some of my viewers, there is a possibility that your person will live behind their family forever so that they can marry you. And for a very specific viewers, don't get me wrong, but it's a specific message, so I feel like I should talk about it. Your person, before your marriage, before meeting you, your person may have some bad habits, but after meeting you, they will leave all those bad habits so that they can pursue you and get married with you. To marry you, your future spouse will, with Trust card, to marry you, your future spouse will take like a bungee jump without the cord. It's like the ultimate trust your person will have upon you and the universe, that they will be safe when they reach the other unknown side. Here, I'm feeling that I'm here with Trust card. I'm feeling the energy of a full card, like
like no guarantee, but just leap of faith that they will be successful and protected. With the Knight of Cups, your future spouse will love you so much. He or she will be ready to give all your love, devotion, time, and fulfill all your demands, so that you will have nothing but just to say yes for this marriage. With guidance card, I'm sensing that your future spouse may visit some Reiki healer, or maybe a spiritual guru who will help them and guide them towards you. As numbered with guidance card and number 3, as in Vedic astrology, number 3 especially talks about like teachers or some spiritual guru. So here I'm feeling that your person will take the help of a spiritually enlightened person, so that he or she can reach to you, and later you will marry with each other. As Ace of Swords, like we have Ace of Swords, as swords generally cuts all the obstacles its way. So in the same way, your person will cut all the opposition, challenges, difficulty in order to marry you. With their patience and intelligence, they will remove all the barriers to pursue you for your marriage. For some of my viewers, you know your future spouse and currently their financial. So for some of my viewers, I'm feeling like you already know your future spouse, and currently their financial condition or situation is not allowing themselves to marry you. But the good thing is that he or she will work very hard, and in near future, I can see the financial success, financial stability. So they will be financially stable, and so that they can marry you, and your dream of becoming husband and wife will be very soon fulfilled. So that was for today. If you like this video, don't forget to like, share and subscribe to my channel, and I will meet you in our next video. Till then, bye bye. हेलो माय लवली सोल्स, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम देखेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे शादी करने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। ये एक चैनल रीडिंग है, सो आप वही मैसेजेस ले जो आपके साथ रिजल्ट करते हो, और बाकी को छोड़ दीजिए। हमेशा की तरह हमारे पास 2 ग्रुप है, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2। आप अपना इंट्यूशन यूज़ करके कोई भी एक ग्रुप चूज़ कीजिए। मैं आपको ग्रुप नंबर 1 में मिलती हूँ। हेलो ग्रुप नंबर 1, आज हम देखेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे शादी करने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। सो हमारे पास है 5 ऑफ wands, 3 ऑफ कप्स, चेंज कार्ड, स्ट्रेंथ कार्ड, सेपरेशन कार्ड एंड लास्ट पास्ट लाइफ कार्ड। सो इस ग्रुप के लिए यहाँ पे मैं ये देख सकती हूँ कि आपके लाइफ में आपके आसपास आपके बहुत सारे एडमायर्स होंगे, और यहाँ पे ऐसा है कि आपके कुछ एडमायर्स ऐसे भी हैं जिन्हें आप जानते हो, या फिर आप उन्हें डाउट करते हो कि ये पर्सन मुझे एडमायर करता है, और कुछ यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो सिक्रेटिव है। सो जब आपकी शादी की बात आती है तो आपके फ्यूचर स्पाउस ऐसे बहुत सारे एडमायर्स का मतलब फेस करने वाले हैं। उनके पास बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स होंगे, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। सो वो जहाँ आपसे शादी करने के लिए वो जितने भी कॉम्पिटिटर्स का उन्हें सामना करना पड़े वो करेंगे, ताकि वो आपसे शादी कर पाए। और 5 ऑफ wands के साथ मैं यहाँ पे ये बोल सकती हूँ कि ये एक अनस्पोकन और टफ कंपटीशन होने वाला है, और यहाँ पे आपके पर्सन मतलब कोई मतलब खुद की साइड से कोई मतलब कसर नहीं छोड़ेंगे, ताकि वो मतलब ये कंपटीशन जीत जाए और आपसे शादी कर पाए। यहाँ पे कुछ मेरे व्यूवर्स के लिए यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप बिफोर मैरिज, आपकी शादी से पहले जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ मतलब लव इन रिलेशनशिप में होंगे, तब मुझे यहाँ पे लग रहा है आपके पर्सन आपके साथ बहुत मतलब आपके साथ स्टिक रहेंगे, या मुझे मतलब मैग्नेट की तरह स्टिक रहेंगे, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। और अगर उन्हें कोई भी चांस मिले, मतलब वो कोई भी एक चांस या अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करेंगे। लाइक अगर कोई आपके फैमिली में कोई फंक्शन हो रहा है या फिर कोई सेरेमनी कुछ ऐसा है, तो वो मतलब हर जगह पे वो आपके साथ दिखेंगे, और मतलब लोगों को ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि आप दोनों की शादी होने वाली है और आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। ऐसा कुछ उनका मतलब माइंड सेट है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। और अगर दूसरे शब्द में ये कहूँ कि वो मतलब आपके साथ रह के दूसरों को ये दिखाएंगे कि आप ऑलरेडी मतलब उन्होंने आपसे मतलब दिल में आपसे शादी कर लिया है, और वो बहुत जल्द आपसे रियल में शादी करने वाले हैं। चेंज कार्ड के साथ यहाँ पे कुछ व्यूवर्स के लिए मुझे यहाँ पे ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस में कुछ ऐसा डिफरेंस होगा, और ये डिफरेंस शायद ऐसा भी हो सकता है फाइनेंशियल डिफरेंस, या कल्चर वाइज और कंट्री वाइज भी हो सकता है। लाइक आप दोनों डिफरेंट कंट्री से बिलोंग करते हो, और आप दोनों और मे भी ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों में एज गैप ज़्यादा हो। तो यहाँ पे लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ डिफरेंसेस दिखाई दे रहा है, जो बाद में जाके आपकी शादी के लिए थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सो यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन वो सारे डिफरेंसेस को, जो भी आप लोगों के बीच डिफरेंसेस है, उनको बैलेंस करने के लिए वो खुद की तरफ से बहुत कोशिश करेंगे।
और अगर ज़रूरत पड़े तो वो खुद दोनों की साइड, दोनों फैमिली से खुद ही बात करेंगे आपके रिश्ते के लिए, और उन्हें वो ट्राई करेंगे कि उन्हें कन्विंस करने, आपके पेरेंट्स को या फिर अपने खुद के मम्मी पापा को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे ताकि अब दोनों की शादी हो सके। और स्ट्रेंथ कार्ड के साथ मुझे इस ग्रुप के लिए ये महसूस हो रहा है कि जैसे कि मैंने चेंज कार्ड में बोला था कि आप दोनों के बीच कुछ डिफरेंसेस होगा, तो ये स्ट्रेंथ कार्ड ये मतलब प्रूफ कर रहा है कि आप लोगों में से कुछ ऐसा डिफरेंसेस होगा जो आपके लिए आप दोनों में से कुछ ऐसा डिफरेंस होगा जो इस शादी के लिए एक बहुत बड़ा बिग चैलेंज जैसा होने वाला है यहाँ पे आप दोनों की मैरिज को लेके। तो आपसे शादी करने के लिए आपके पर्सन जो भी इस चैलेंज उनके सामने होगा ना, उस चैलेंज को वो एक्सेप्ट करेंगे और मतलब उस वहाँ पे जो भी है उस पर खड़े उतरने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है। और अगर आप इस स्ट्रेंथ कार्ड को देखो तो यहाँ पे आप देखोगे कि मतलब एक लेडी इस लायन के या सिंह के मतलब जुबान खोलने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पे मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि उस लेडी में कितनी हिम्मत है कि ताकि वो ऐसा काम कर रही है। तो सेम वे आपके पर्सन भी आपको पाने के लिए, आपसे शादी करने के लिए कुछ सिंबॉलिकली कुछ काम करेंगे, कुछ ऐसा बिग चैलेंज फेस करेंगे। जैसे कि ये लेडी लायन का जुबान मतलब उसका माउथ ओपन कर रहा है, कुछ ऐसा ही बड़ा बिग चैलेंज आपके पर्सन फेस करेंगे और मतलब डेयरिंगली वो जो भी प्रॉब्लम है तो ये मतलब सारे कार्ड्स को देख के मुझे ये पता चल रहा है कि आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं। और यहाँ पे कुछ मैं व्यूअर्स के लिए यहाँ पे ये है, शायद आपसे रिजल्ट करते हो या फिर आपके फ्यूचर्स पास से शायद रिजल्ट कर सकता हो, लेकिन यहाँ पे मुझे ये सेंस हो रहा है कि आपके इस मैरिज को लेके ना आपकी साइड से या फिर आपके फ्यूचर्स पास की साइड से, फैमिली की साइड से मतलब कुछ बहुत मतलब वहाँ पे बहुत सारे डिमांड्स और एक्सपेक्टेशंस दिखाई दे रहे हैं। लाइक अगर लड़के के लिए हो या फिर लड़की के लिए हो, लाइक उनका बैकग्राउंड ऐसा होना पड़ेगा, उनका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा होना चाहिए मतलब, और उनके पास इतना बैंक बैलेंस होने चाहिए, उनकी स्किन टोन ऐसा होना चाहिए, उनकी हाइट ऐसी होनी चाहिए, मतलब बहुत सारा एक लिस्ट, बहुत बड़ा डिमांड का लिस्ट यहाँ पे भरा पड़ा मुझे दिखाई दे रहा है। और जो भी आपसे शादी करेंगे या फिर आपके फ्यूचर्स पास से जो मतलब शादी करेंगे, मतलब वो सारे मतलब उनके डिमांड लिस्ट के सारे डिमांड्स उन्हें फुलफिल करना पड़ेगा ताकि वो उनकी फैमिली स्टैंडर्ड मेंटेन कर पाए और उनके चाइल्ड के लिए वो मतलब वोटी हो पाए, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे असल बात यह है कि आप या फिर आपके फ्यूचर्स पास मतलब इतने सारे डिमांड्स को नहीं देखेंगे, बस वो चाहते हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं या फिर आप उनसे प्यार करते हो। आप दोनों के लिए एक दूसरे का साथ ही बहुत बड़ा मतलब बहुत इंपॉर्टेंट की बात है। और यहाँ पे आपके मतलब जो भी लास्ट में आप हो या फिर आपके फ्यूचर्स पास जो भी हो, वो अपने दिल की सुनने वाले हैं और वही मतलब उनके लिए बहुत बड़ा स्टेप होगा आपकी तरफ। और कुछ मेरे व्यूवर्स के लिए यहाँ पे ये है कि आपके फ्यूचर्स पास के ना आपके फ्यूचर्स पास के साथ आपका बहुत मेनी पास्ट लाइफ कनेक्शंस यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है इस कार्ड में। अगर आपको ये कार्ड दिखाई दे यहाँ पे मतलब पास्ट लाइफ दिखाई दे रहा है और बहुत सारे लोग यहाँ पे है, तो आपने ना अपने लाइफ आप पहले ही इस दुनिया में आ चुके हो और आपने बहुत सारा मतलब लाइफ स्पेंड किया हुआ है इस वर्ल्ड पर या धरती पर, यहाँ पर ये कहूँ। और यहाँ पे एक ऐसा है कि मतलब आप दोनों के सोल ने पहले ही एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करके रखा है कि जब भी आप धरती पे आओगे, जब भी आप इस दुनिया में जन्म लोगे, तो आप एक दूसरे के साथ ही शादी करोगे। यहाँ पे ऐसा है और इस जन्म में भी मतलब आप एक दूसरे के साथ शादी करने के लिए बाउंड हो, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। और चाहे जो भी मतलब प्रॉब्लम्स आए, जो भी चैलेंजेस आए आपके शादी के सामने या फिर आप एक दूसरे के साथ होने के सामने, लेकिन आपके पर्सन वो सारे चैलेंज को और सारे ऑब्स्टिकल्स को वो रिमूव करेंगे और वहाँ पर जीत करके आपसे शादी करने के लिए मतलब वो रेडी रहेंगे। और यहाँ पे मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि यूनिवर्स आपके साइड में है और यूनिवर्स आपकी इस रिलेशनशिप को सपोर्ट करेंगे। तो ये था आज के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, आज हम देखेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे शादी करने के लिए किस हद तक जाएंगे। सो हमारे पास है लेटिंग गो कार्ड, ट्रस्ट कार्ड, नाइट ऑफ कप्स, गाइडेंस कार्ड, एस ऑफ स्वर्ड्स एंड फोर ऑफ वंस। विथ लेटिंग गो कार्ड आई एम फीलिंग दैट यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पर्सन आपसे शादी करने के लिए वो बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ अपने लाइफ से सेक्रीफाइस करेंगे। और कुछ मेरे व्यूवर्स के लिए यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी है कि आपके पर्सन आपसे शादी करने के लिए अपने फैमिली को हमेशा मतलब फॉरएवर लीव करने वाले हैं, या फिर ऐसे कहूँ वो उन्हें अपनी फैमिली को छोड़ना पड़ेगा ताकि वो आपसे शादी कर सके। ऐसा पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे कुछ लेटिंग गो कार्ड के साथ मुझे यहाँ पे एक दूसरा मैसेज भी है। यहाँ पे ये वेरी स्पेसिफिक मैसेज है और यहाँ पे जो इस मैसेज को रिसीव करेंगे वो भी मतलब वेरी स्पेसिफिक व्यूअर है। तो ये मैसेज ये है कि यहाँ पे आपके मिलने से पहले आपके पर्सन का कुछ उनके कुछ बैड हैबिट्स हैं, और जब वो आपसे मिलेंगे उसके बाद जितने भी सारे वो बैड हैबिट्स है अपने वो सब कुछ सारे बैड हैबिट्स को छोड़ेंगे ताकि वो आपको परस्यू कर सके और आपसे शादी कर सके। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है।
आपसे ट्रस्ट कार्ड के साथ मुझे यहाँ पे ये महसूस हो रहा है कि आपसे शादी करने के लिए आपके फ्यूचर स्पाउस मतलब जैसे बंजी जंपर होते हैं ना, मतलब कुछ मतलब ट्रस्ट करके या फिर मतलब अपनी हिम्मत को लेके मतलब जंप करते हैं। मुझे ट्रस्ट कार्ड के साथ यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपके फ्यूचर स्पाउस यहाँ पे मुझे बंजी जंपर जैसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे वो मतलब जैसे बंजी जंपर्स कहते हैं ना, मतलब अल्टीमेट उन्हें ट्रस्ट होता है कि हाँ वो जब मतलब दूसरे साइड तक पहुँचेंगे तब उन्हें मतलब वो प्रोटेक्टेड रहेंगे और वो अपने भगवान के भरोसे या फिर यूनिवर्स के भरोसे मतलब ऐसा मतलब काम डेयरिंग कुछ करने के लिए अपने लाइफ में ट्राई करते हैं। ठीक वैसे ही यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए भी मतलब आपसे शादी करने का जो डिसीजन है ना, वो ऐसे बंजी जंपर्स जैसा डिसीजन होगा उनके लिए। और यहाँ पे ट्रस्ट कार्ड के साथ मुझे ना मतलब फुल कार्ड की एनर्जी यहाँ पे आ रही है, क्योंकि यहाँ पे मतलब सिर्फ यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है कि आप मतलब सक्सेसफुल रहोगे, लेकिन आप मतलब सक्सेसफुल रहोगे या फिर प्रोटेक्टेड रहोगे, बस एक ट्रस्ट है वो। और वो ट्रस्ट वो आपके फ्यूचर्स पास वो ट्रस्ट आप पे करेंगे और यूनिवर्स पे करेंगे, ताकि उन्हें जो आपके साथ शादी करने का उन्हें जो डिसीजन लेना है ना, वो डिसीजन राइट हो, सही हो और उस डिसीजन में कोई प्रॉब्लम या चैलेंज ना आए। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। और यहाँ पे आपके फ्यूचर स्पाउस ना आपसे बहुत प्यार करते हैं और वो अपने तरीके से हर कोशिश करेंगे ताकि वो आपसे मतलब अपना वो आप पे मतलब 100% अपना डिवोशन देंगे, टाइम देंगे, अपना लव देंगे, ताकि आपकी जितने सारे नीड्स है या आपके सारे मतलब जो आपके लाइफ में जितने सारे डिज़ायर्स है वो सारे आपके डिज़ायर्स को फुलफ़िल कर सके, ताकि मतलब जब वो आपको मैरिज के लिए प्रपोज करे आपकी आंसर सिर्फ हाँ में हो। ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। यहाँ पे गाइडेंस कार्ड के साथ मुझे यहाँ पे ये महसूस हो रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस ना कोई रेकी हीलर या फिर ऐसे लोग रेकी हीलर के पास जाएंगे या फिर कोई स्पिरिचुअल गाइड के पास जाएंगे, उनसे हेल्प लेंगे और गाइड लेंगे ताकि वो आपसे मिल सके या फिर आपसे मतलब शादी करने का उनका जो ड्रीम है या फिर उनकी जो रास्ते के जो भी प्रॉब्लम्स है वो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। अगर आपको ये अच्छे से दिखाई दे रहा हो तो यहाँ पे आपको गाइडेंस कार्ड के साथ नंबर 3 आपको शायद दिखाई दे रहा होगा। तो ये नंबर 3 इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी नंबर 3 यहाँ पे टीचर्स के या फिर स्पिरिचुअल गुरु के बारे में भी बोलते हैं। तो यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पर्सन आपसे शादी करने के लिए या फिर आपके पर्सन ना कोई मतलब स्पिरिचुअली मास्टर किया हुआ कोई मतलब सिद्ध इंसान के पास जाएंगे और ताकि उनसे हेल्प लेंगे ताकि वो आप तक पहुंच सके और ये शादी हो सके। क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस मतलब आप दोनों अभी तक नहीं मिले हो और आपके फ्यूचर स्पाउस आप तक पहुंचने के लिए आपके बारे में सोचे कि मतलब ऐसा क्या करे वो अपने फ्यूचर स्पाउस तक पहुंच सके। मतलब आप दोनों कहीं सर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों अभी भी तक नहीं मिले हो और आप दोनों का बैकग्राउंड या फिर आप दोनों कहीं दूसरे जगह पर आप किसी एक जगह पे आपके फ्यूचर्स पास किसी दूसरे जगह पे और वो मतलब उनके फैमिली में कोई ऐसा है जो मतलब उनके मम्मी पापा या फिर उनके फैमिली मेम्बर कोई सिद्ध इंसान को मानते हैं या फिर और उनसे कोई भी बड़ा डिसीजन लेने के लिए उनकी मदद लेते हैं। ठीक वैसे ही आपके फ्यूचर्स पास उस इंसान की मदद लेंगे ताकि वो आपसे अब तक पहुँच सके। मुझे ऐसा लग रहा है। और एस ऑफ कप स्वॉर्ड्स के साथ मुझे यहाँ पे लगता है बेसिकली स्वॉर्ड्स क्या करता है वो मतलब अपने रास्ते में जितने ऑब्स्टिकल्स है वो भी चीज़ को सारे ऑब्स्टिकल्स को काटते हैं। तो इन द सेम वे मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन आपसे शादी करने के लिए उनके रास्ते पे अगर कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर अपोजिशन हो, चाहे जितने भी चैलेंजेस हो, डिफ़िकल्टी जो भी हो आपसे मैरिज करने के लिए, सारी डिफ़िकल्टी को चैलेंज को वो मतलब कट करके वो आगे बढ़ेंगे ऐसा लग रहा है। और उनकी जो पेशेंस है या इंटेलिजेंस है वो अपने पेशेंस और इंटेलिजेंस को यूज़ करके अपने रास्ते के सारे ऑब्स्टिकल्स को दूर करेंगे ताकि आप एक दूसरे के साथ शादी कर सको और खुश रहो। और 4 ऑफ वंस के साथ मुझे यहाँ पे ये महसूस है कि आप यहाँ पे कुछ ऐसे मेरे व्यूवर्स हैं जो अपने फ्यूचर स्पाउस को ऑलरेडी जानते हो और अभी उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि वो अभी शादी करने के लिए राज़ी हो। तो यहाँ पे अच्छी बात यह है कि नियर फ्यूचर मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस के फाइनेंशियल कंडीशन अच्छे होने वाले हैं और उन्हें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या फिर सिक्योरिटी मिलने वाली है और आप बहुत जल्द शादी करने वाले हो। तो ये था आज के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।